الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد الذی اذهب اللہ قیل فی شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اذهب اللہ قیل فی شانہ فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا پر بآواز بلند صلوات سب سے پہلے پروردگار کا شکر، پروردگار کا کرم کہ پروردگار نے آپ مومنوں کی زیارت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد پروردگار سے دعا ہے کہ خدا آپ سب کا اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اپنے دلوں میں جو حاجات لے کے آئے ہیں، جو دعائیں لے کر آئے ہیں، یقیناً اس عزا فرش عزا کے جو مالک ہیں، باب الحوائج ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ ایسی حاجات کو جانتے ہیں کہ الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے جو ضروری ہے فرش عزا سے اس کو عطا ہوتا ہے۔ سب کی دعائیں پروردگار قبول و مقبول فرمائے۔ آپ سب کے بانیان کی حاجات پروردگار پوری فرمائے۔ بے اولادوں کو پروردگار اولاد عطا فرمائے۔ بے گھر مومنین کو پروردگار گھر کی نعمت عطا فرمائے۔ بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے۔ اور پروردگار سے دعا ہے کہ اس مجلس عزا، اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جل پروردگار ظہور فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی حاجات کی بجاوری کے لیے، بانیان کی اور اپنی تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم۔ تھوڑا سا بیان کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق کہ اہل بیت ہیں کیا۔ خدا نے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد کے بارے میں حدیث قصہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے وہ جناب سرور کائنات کے لیے۔ زمین بنائی تو آپ کے لیے، آسمان بنایا تو آپ کے لیے، یہ روشنیاں بنائیں تو آپ کے لیے، غرض کائنات کو جو سجایا ہے خدا نے وہ جناب سرور کائنات کے لیے۔ اب
बानियान ने जो मजलिस का एहतमाम किया है, ये किस लिए किया है? ये शामियाने क्यों लगे हैं? ये इसलिए लगे हैं कि आप आराम से यहाँ बैठ सकें, जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को सुन सकें। जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आप तशरीफ ले जाएंगे, ये तमाम सूरत हाल को लपेट दिया जाएगा, कनातें उतर जाएंगी, पंखे बंद हो जाएंगे, माइक ऑफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए किया था। जब आप चले गए तो सब कुछ समेट दिया गया। अब परवरदिगार ने जो कुछ कायनात में बनाया है वो जनाब सरवरे कायनात के लिए है। जब जनाब सरवरे कायनात पर्दा फरमा गए ज़ाहिरी तौर पर, तो अब असूल तो ये था कि ये सब कुछ समेट दिया जाता, सब कुछ लपेट दिया जाता, सूरज और चांद बुझा दिए जाते, सितारे खत्म कर दिए जाते, दरिया बहना छोड़ देते, पहाड़ खड़ा होकर अपना गरूर और तकब्बुर उनका खत्म कर दिया जाता। मगर हर चीज आज तक जो अपने मकाम पर बाकी है और जैसी थी वैसी है, जैसी जनाबे सरकार की जिंदगी में थी उन वैसी ही है। तो मानना पड़ेगा कायनात में कोई मोहम्मद अभी भी जिंदा है, कोई मोहम्मद अभी भी जिंदा है कि जिसके लिए परवरदिगार ने ये पूरा निजाम रखा हुआ है। उलमा और ज़ाकिरीन से फजाइल सुनते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के। परवरदिगार सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। आज मेरा दिल चाहता था कि मैं जनाबे अमीर के फजाइल आपको बाज़बाने वही सुनाऊं कि जनाबे सरवरे कायनात जब अली के फजाइल पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अली सुनना, अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना। थोड़ा सा अगर हम मेरा साथ देंगे, तवज्जो करेंगे। अली सुनना, अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, मेरा हर वक्त गुजरता है इबादत ही इबादत में। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जनाबे अबू ज़र मस्जिद में तशरीफ फरमा है, जनाबे सरवरे कायनात बैठे हुए हैं। क्या हुआ कि थोड़ी देर में जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ लेकर आते हैं और जनाबे रसूल खुदा अबू ज़र से पूछते हैं, क्या अबू ज़र तू जानता है कि ये कौन है? जनाबे अबू ज़र ने कहा कि हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ ये कौन है। ये आपके चचाजाद हैं, आपके दामाद हैं, ज़हरा के शोहर हैं, हसनैन के बाबा हैं, ये फाते खैबर और खंदक हैं, मैं जानता हूँ इनको। कहा अबू ज़र ये वो फजाइल हैं जो तू जानता है, ये वो फजीलतें हैं जो तू जानता है। अगर तू कहे मैं तुझे बताऊं कि अली क्या है, तो उस वक्त जनाब अबू ज़र फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह जरूर आप इरशाद फरमाएं कि अली क्या है। तो उस वक्त जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के सामने बिठाकर जनाब सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि याद रखना, खुदा तक पहुंचने का सबसे बड़ा दरवाजा अली इब्न अबी तालिब है। अगर खुदा तक पहुंचना चाहते हो तो उसका सबसे बड़ा दरवाजा अली इब्न अबी तालिब है। याद रखना कि अली जिस तरीके से परवरदिगार ने ये आसमान को खड़ा किया है, परवरदिगार ने आसमान के खड़े करने के लिए सतून बनाए हैं। हर सतून के नीचे परवरदिगार ने 70,000 मलाइका को खड़ा किया है और वो जो मलाइका हैं उनकी कोई और इबादत नहीं है। ना उन्होंने कोई तस्बीह पढ़नी है, ना उन्होंने रकू में जाना है, ना उन्होंने सजदे करने हैं। उनकी इबादत क्या है? रसूल खुदा फरमाते हैं अबू ज़र याद रख कि वो जितने भी मलाइका हैं उनकी फजीलत ये है, उनका काम ये है, उनकी इबादत ये है कि जब तक रहेंगे, जब तक कयामत नहीं आती, आसमान को उठाए हुए हैं और उनके लबों पर सिर्फ दो काम है, या तो अली पर सलवात पढ़ते हैं और दूसरा अली के दुश्मन पे लानत करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। परवरदिगार ने
बहुत शानें अता की हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। हर नबी की जनाब परवरदिगार ने मेराज अता की है, हर नबी को। जनाब सरवर कायनात को भी, मोमिन के लिए भी मेराज है। हर एक के लिए खुदा ने मेराज के मकामात रखे हैं कि मेराज होती क्या है, मेराज कहते किसको हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद का। हजरत इस्माइल की मेराज क्या थी कि लेट गए, गर्दन पे छुरी चल गई, मगर परवरदिगार ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। ये जनाब इस्माइल की मेराज थी। जनाब इब्राहिम की मेराज के नारे नमरूद में फेंक दिया गया, आग उन पे गुलो गुलजार बन गई, ठंडी हो गई। ये जनाब इब्राहिम की मेराज थी। और इसी तरीके से जनाब मूसा जब कोहे तूर पे जाके परवरदिगार से हम कलाम होते थे, तो ये उस वक्त जनाब मूसा की मेराज थी। और जनाब सरवर कायनात की मेराज से आप सब वाकिफ हैं कि जब जनाब सरवर कायनात गए हैं और वहां पर जाकर तमाम मामलात देखे हैं, और वहां पर वो सेब नोश फरमाया कि जिसके बारे में अहादीस में मिलता है कि जब भी सैयदा आती थी, जनाब सरवर कायनात एहतराम के लिए खड़े होते थे, तो एक जोजा जनाब सरवर कायनात ने ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जब भी फातिमा आती हैं आप उनके एहतराम में खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके हाथों के बोसे लेते हैं, उनकी पेशानी का बोसा लेते हैं, तो ये क्यों करते हैं? आपको तो चाहिए कि आप बाप हैं, बेटी आपके हाथ का बोसा ले तो आप उनके हाथ का बोसा लेते हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, शायद तू भूल गई है कि ये फातिमा उम्मे अबीहा है, ये अपने बाप की भी माँ है। तो मेरा ख्याल ऐसा रखा जैसे माएँ ख्याल रखती हैं, और मैं माथा चूमता इसलिए हूं जनाब सैयदा का कि मैंने मेराज पर जो एक सेब खाया था, मुझे आज तक सैयदा की पेशानी से उसकी खुशबू आती है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये जनाब सरवर कायनात की मेराज, और परवरदिगार ने मोमिन की भी मेराज करार दिया है। जनाब सरवर कायनात फरमाते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। और नमाज इसलिए पढ़नी है कि आले मोहम्मद ने पढ़ी है, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। सबसे बड़ी बात कि जनाब सैयदा ने अपने पहलू पे हाथ रख के पढ़ी है। तो हर मोमिन को नमाज पढ़नी है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आना, इस दुनिया में रहना, इस दुनिया को इंसानियत का दर्स और तबलीग करना, ये इंतहाई बड़ा कमाल है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। और बहुत सारे फजाइल आले मोहम्मद के ऐसे बयान हुए हैं कि इंसान जब भी सुनता है तो ईमान में ताजगी आती है। एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात बीमार थे, तबीयत खराब थी। जनाब अली अलैहिस्सलाम पास तशरीफ फरमा थे कि हजरत अबू बकर आते हैं और जनाब सरवर कायनात की अयादत करना चाहते हैं, और वहां पे अयादत करने के लिए गुफ्तगू जनाब रसूल अकरम से करते हैं और ज़ियारत अली अलैहिस्सलाम की करते हैं। तो बेटी बैठ के देख रही थी, कहने लगी अपने बाबा से कि बाबा, आप गुफ्तगू के आदाब से वाकिफ नहीं कि जिसकी तरफ गुफ्तगू की जाती है चेहरा भी उस तरफ रखा जाता है। आप गुफ्तगू रसूल खुदा से फरमा रहे हैं, चेहरा अली का देख रहे हैं, तो ये आदाब गुफ्तगू नहीं है। तो उस वक्त हजरत अबू बकर कहते हैं कि बेटा, आप बेशक रसूल के साथ रहती हैं, मगर आपको रसूल का फरमान याद नहीं रहा कि रसूल ने फरमाया है कि अली के चेहरे की जियारत इबादत है, अली के चेहरे की जियारत करना इबादत है। तो बेटी ने जब ये सुना ना, तो बेटी ने कहा, बाबा, अली के चेहरे की जियारत करना भी इबादत है, अली का जिक्र करना ये भी इबादत है। जब इतनी शख्सियतों ने फजाइल जनाब अमीर पढ़े, तो जनाब सरवर कायनात ने आंखें खोली। आंखें खोल के इरशाद फरमाते हैं, याद रखना, दिल में अली की मोहब्बत रखना भी इबादत है।
جب تک دل میں محبت نہ ہوگی علی کی تو نہ زیارت کرنا ثواب دے گا، نہ علی کا ذکر کرنا ثواب دے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس اپنی ڈیوٹی میں نے پوری کر دی، چند ایک منٹ مجلس کی تکمیل کے لیے کہ وہ ایام شروع ہیں جنہیں ایام زینبیہ کہا جاتا ہے، وہ ایام شروع ہیں جنہیں امام علی زین العابدین سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام علی زین العابدین اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس طریقے سے کربلا میں جو کچھ ہوا اس کو بیان کیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر جناب زینب عالیہ نہ ہوتی، امام علی زین العابدین نہ ہوتے تو کربلا کے اندر ہی دفن ہو گئی ہوتی، کسی کو علم نہ ہوتا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اذان کا قبلہ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نام ملتا ہے، کنیز ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی گھر کی، قرآن سیکھا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، نام ہے شیریں۔ مولا حسین نے فرمایا شیریں تیار رہنا، کسی دن ہم تیرے گھر مہمان آئیں گے۔ شیریں نے پوچھا مولا اکیلے ہوں گے؟ مولا نے فرمایا نہیں، اکیلے نہیں ہوں گے، زینب بھی ساتھ ہوگی، سکینہ بھی ساتھ ہوگی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ سب ساتھ ہوں گی، ہم تیرے مہمان بنیں گے۔ شیریں بہت خوش ہوئی کہ جب بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آئیں گے تو ہو نہ ہو علی اکبر کی شادی والا دن ہوگا کہ جب میرے گھر آئیں گے۔ وہ وقت بھی آ گیا بازار میں کہ جب ملعونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب رات کو کہیں آرام کیا جائے اور یہ جو سر نیزوں پہ ہیں ان کو کسی گھر میں رکھا جائے، رات گزاری جائے، صبح پھر سفر کیا جائے۔ اب وہ گھر کون سا منتخب کیا گیا؟ وہ دن جو مولا حسین نے بتایا تھا، شیریں کو وہ دن بھی یاد تھا، وہ وقت بھی یاد تھا۔ شیریں نے اپنے گھر کو سجانا شروع کیا، مسند لگانی شروع کی کہ یہاں آئیں گے تو مولا حسین بیٹھیں گے، یہاں آئیں گے تو مولا عباس بیٹھیں گے، جناب علی اکبر کی بھی کرسی تیار کر دی، بیویوں کے پردے کا انتظام کر دیا۔ وہ گہنا گہنی میں مصروف ہے، اپنے گھر کو سجا رہی ہے اور تیار کر رہی ہے کہ اب دروازے پہ دستک ہوئی، بتایا گیا کہ یہ جو آئے ہیں نا باغیوں کے سر، یہ آج تیرے گھر میں رکھے جائیں گے۔ وہ دروازہ کھول دیا گیا، بیویاں جو قیدی تھی وہ بھی اندر آ گئیں اور صحن میں بیٹھ گئیں، اور تمام شہداء کے سروں کو دیوار کے ساتھ دیکھ کر رکھ دیا گیا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئی کہ مجھے بتائیے یہاں پر تو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا کہ اگر ہم روئیں گے تو وہ ہم پہ ظلم کرے گا، تو کیا یہاں پر میں اپنے بابا کو یاد کر کے کچھ دیر کے لیے رو سکتی ہوں؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ جاؤ اس گھر کی مالکن سے اجازت لے کر آؤ کہ ہم رو سکتے ہیں، اجازت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اجازت ہے، بچی ہے رو لے۔ اب وہاں پر آگے کہا نا کہ اماں اجازت مل گئی، پھپھی اماں رو سکتے ہیں۔ جب رونے کی اجازت کا نام سنا نا
تو जनाब ज़ैनब आलिया की एक आह निकली। बीबी फरमाती हाय मेरा हुसैन। बीबी ने कहा ना हाय मेरा हुसैन, शीरी तड़प गई, सब काम छोड़ के आके कहती है आपको रोना है ना तो आप अपने इस जो इसका नाम लेके रोती हैं, इसका नाम लेके ना रोएं, इसका नाम मेरे सरदारों से मिलता है, इसका नाम मेरे सरदारों से मिलता है, इसका नाम लेके ना रोएं, आप इसके भाइयों का नाम ले लें, किसी और मर्दों का नाम ले लें, तो मेहरबानी इसका नाम लेके रोती है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो जनाब ज़ैनब आलिया ने दूसरा बयान किया हाय मेरा वीर अब्बास। जब वीर अब्बास का नाम सुना शीरी तड़प गई, कहने लगी क्या एक इत्तफाक है कि मेरे सरदारों के भी यही नाम है जो आप इनका नाम लेके बयान करती हैं। आप ऐसा करें कि इनकी मस्तूरात का नाम लेके रो लें, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे तकलीफ होती है जब अपने सरदारों के नाम पे बयान सुनती हूँ। तब बीबी ने जब तीसरा बयान किया, बीबी फरमाती हैं हाय अम्मा फातिमा। जब ये नाम सुनना था शीरी तड़प गई और आके कहती है खातून मुझे बता तू कौन है कि इसके सर तेरे मर्दों के नाम हमारे सरदारों जैसे हैं, जिनकी औरतों का नाम लेके तू बयान करती है हमारी सरदानियों जैसी हैं, हमारी सरदार ऐसे थे, तो उनका नाम लेके बयान करती है, बीबी बता तू कौन है। बीबी ने अपने बालों को चेहरे से हटाया और कहा शीरी तुझसे वादा ना किया था मेरे भाई हुसैन ने कि हम तेरे घर मेहमान आएंगे। शीरी पहचान मैं ज़ैनब हूँ, ये बच्ची सकीना है। कहा मेरे आका और मौला हुसैन कहाँ है? कहा ये जो नेज़ों पे सर है जिनका तू मेहमानों का इंतजार करती थी, ये हुसैन का सर है, ये अली अकबर का सर है, ये ओनो मोहम्मद का सर है। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले